नमस्कार आत्मवंदन मास्टर्स। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे PSSM डिवाइन शाइन के इस सेशन में। आज हमारे साथ हमारे विशेष गेस्ट गौरव पालीवाल सर हैं। सर बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं और योगा क्रिया मेडिटेशन आदि बहुत सारी क्रियाओं से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज सर हमारे साथ हैं। सर ने विशेष रूप से यूथ्स को ध्यान के बारे में नॉलेज देकर और ज़्यादा अवेयरनेस करने के लिए मोर देन 4 इयर्स तक क्वांटम फिजिक्स पर रिसर्च भी किया है। सो मास्टर्स, आइए हम सभी मिलकर स्वागत करते हैं गौरव सर का, जिन्होंने अपने विशेष इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए स्पेशल टाइम निकाला। पूरे रेस्पेक्ट के साथ मैं तहे दिल से सर आपका यहाँ स्वागत करती हूँ और हमारा जो आज का टॉपिक है मैनिफेस्टेशन, उसके बारे में जानने के लिए ये सेशन आपको मैं हैंड ओवर करती हूँ। सो नाउ ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार डॉक्टर रितु जी एंड आप सभी को जो मास्टर्स जुड़े हुए हैं। धन्यवाद पहले मुझे फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड फॉर ज्वाइनिंग बिकॉज द ग्रुप एनर्जी इज ऑलवेज much more than our individual energy. So this is one topic which really impacts everyone because as human we do want something. And how to get what we want in life is manifestation. Now, people may call it magic, that whatever you think, it's happening, that kind of thing, but actually it's not. And that's what we want to talk about today. And that's why it is so important that sooner in your life you understand and follow it, happier you will be. So don't wait when you are 50 or 60, and then you feel that, oh my God, if it was so simple. If it was so easy that I could have got anything I wanted, I could have picked any career I wanted, right? Then why didn't I do when I was just 10, 15, or 20? So even if you are, say, at 50 or whatever age you are at, don't worry. If you follow, if you understand, then you can help others. You can help your kids, your, other people around you. So doesn't matter which way, we can always make benefits. I will start sharing my slides and then we will get into this topic. After this, certainly we will take your questions, your doubt, anything that you want to clarify or that you want to know, so that at the end of it, you should have something that you can take with you after the session and say, okay, you have invested this time today in this topic, then you go with some real thing that you can implement into your life, make your life more blissful. So, manifestation. So we will get into what is manifestation, and then we will say, why we should worry about it, why we should know about it, why we should get into deeper of this topic, and then of course, how. Because once you understand how to do it, once you have understood the topic, doing becomes easier. Like any other topic. So the first thing is we should know why. At this stage, I have so many possibilities. I could be working, I could be dancing, I could be singing, I could watch TV or do whatever. Why should I invest my time in this topic of manifestation? Is it for me? That's each one of you has to answer. Because if it is not for you, then why worry? But once you know, yes, it is for you, now you have created a pull from within. That yes, I want to know and I want to do it, which is half the battle, actually. So it doesn't matter where you live, what your age is, your situation, what profession you are in. We all have challenges. Any human being will have some challenges. Yes, you may say, people can debate that my challenge is bigger than yours. That's okay, but we all have challenges. Doesn't matter small or big.
Every day, as we live, as we do what we call karmas, right? We have some wish, some, ichha, which is very basic to being human. So this thing will not end. Whether you are 15 thinking of which career, or you are 70 years of age, you are retired, still you will have some challenges and some want. You want to progress. You may want to progress spiritually. You may want something for your family. And सो एक चीज इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वो है हमारी जो इच्छा है, क्या हम उसको समझते हैं। कई बार ये डाउट आता है कि ये जो इच्छा है ये गलत है क्या। अगर मेरे को एक कार चाहिए, एक नया घर चाहिए, क्या ये गलत है? क्या मुझे खाली स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, खाली इन सब चीजों के बारे में ही सोचना है? तो इसमें कोई सही और गलत नहीं है। कोई भी चीज जो आपके दिल से आ रही है वो सही है। हाँ, कई बार हमें लगता है कि हमारे दोस्त ने ये कैरियर चूज किया है, हम भी कर लेते हैं। उसने कुछ सोच के ही किया होगा। कई बार होता है हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि आप ये कैरियर लीजिए, आपके लिए अच्छा है। आपका दिल क्या कहता है वो इम्पोर्टेंट है। और ये किसी भी एज में काम करेगा। जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपके बच्चे आपको कहते हैं ऐसा मत करो, वैसा मत करो। वो आपका भला चाहते हैं, लेकिन इन अ वे वो आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं। वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ, आप गिर जाओगे। कहते हैं ना कि भाई, बुढ़ापे में चोट लग जाएगी तो इट टेक्स काफी समय लगता है उसको ठीक होने में। लेकिन बात तो यही है कि कोई आपको बता रहा है। जब आप छोटे थे तो पेरेंट्स बता रहे थे कि आपको कैसे चलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, चोट लग जाएगी मत करो। जब आप बुढ़ापे में हैं तो बच्चे बता रहे हैं। तो कहानी सेम रहती है, चाहे आप छोटे हों या बड़े हों, डजेंट मैटर। हमें अपने दिल से कनेक्ट करना है अपने। आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई परिणाम नहीं मिल रहे हैं, जो आप चाहते हैं वो हो नहीं रहा है। तो हमें लगता है कि यार हम अनलकी हैं। मैं अनलकी हूँ, बाकी सबको सब मिल जाता है, खाली मेरे को ही जो मैं चाहता हूँ वो नहीं मिल रहा है। ये एक बड़ी कॉमन सी फीलिंग आती है। तो आज हम इस सबको देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। हर एक के लिए ये एक ही तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडिया में हैं तो ये एक तरह से काम करेगा, नॉर्थ अमेरिका में अलग करेगा, या यूरोप में अलग। इसका कोई मतलब नहीं है। आप कहाँ हैं, क्या एज है, क्या आपका बिलीफ है, मतलब आप किस धर्म को मानते हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको जब ये समझ में आ जाएगा कि हमारे विचार ही हमारा भविष्य तय करते हैं, तो हम अपने विचारों को कैसे बदलें जिससे हम जो चाहें वो हम पा सकें। और एक बार नहीं, क्या ये बार बार हम कर सकते हैं? मान लीजिए आज आपको एक कार चाहिए थी, कार मिल गई, तो क्या इसका मतलब कहानी खत्म, इसके बाद आप कुछ नहीं मांग सकते? एक ही मौका था? नहीं। इसमें कोई लिमिट ही नहीं है मौकों की। आप हर रोज कुछ भी मांग के उसको पूरा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसका एक प्रोसेस है, उसका एक तरीका है। बट समझने की बात यह है कि इसमें कोई लिमिट नहीं। यूनिवर्स हमारे कोई लिमिट तय नहीं करता है कि आप इतनी चीजें मांग सकते हो या उतनी। ऐसा कोई इसमें लिमिट नहीं है। सो अगर प्रोसेस आपको समझ में आ जाए किस तरह करना है, तो आप उसको बार बार अपने जीवन में कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन सुख में होगा। जिसको हम कहते हैं ना कि भाई, कुछ लोग होते हैं जिनको देख के लगता है कि ये हमेशा खुश रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं उनको कुछ भी मिल जाए वो हमेशा दुखी रहते हैं। आप क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी हाल में मैं खुश हूं, अंदर से खुशी ही मिल रही है मेरे को, हंसी आ रही है, रोना नहीं आ रहा, तो मैनिफेस्टेशन को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि यूनिवर्स आके आपके लिए कुछ करेगा, करना आपको ही है। लेकिन सवाल ये है, करना क्या है। सो मैनिफेस्टेशन में एक चीज देखिए, मान के चलिए, इसमें आपको, जब तक आपके साथ नहीं होगा, ये कहानी है, जिस दिन आपके साथ पहली बार होगा उस दिन आपको इसमें विश्वास होगा, उसमें ट्रस्ट डेवलप होगा।
लाइफ सिंपल है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दें। यूनिवर्स ऐसा नहीं है कि किसी एक की बात सुनता है दूसरे की नहीं सुनता। सच्चाई ये है कि हम मांगते ही नहीं है यूनिवर्स से, और जो हम मांग रहे हैं वो एक्चुअली जो हमें चाहिए उसका कई बार उल्टा मांगते हैं। चाहिए हमें सेहत, और हम दिन भर सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मैं बीमार नहीं हूं या मुझे कोई बीमारी नहीं है। ये नेगेटिव थॉट्स हैं। मैं बीमार नहीं हूं, आप सोच रहे हैं बीमारी के बारे में। आपको लगता है कि मैं तो पॉजिटिव सोच रहा हूं, क्योंकि जब मैंने कहा मैं बीमार नहीं हूं मतलब मेरी सेहत अच्छी है। लेकिन यूनिवर्स किसी भी भाषा में बात नहीं करता, वो ऊर्जा एनर्जी की लैंग्वेज में बात करता है। तो जब आप कहते हैं मैं बीमार नहीं हूं, जो एनर्जी इस वाक्य की है, सेंटेंस की है, वो है बीमारी की। यूनिवर्स कहता है जो मांगोगे मिलेगा। आप बीमारी की बात कर रहे हो दिन भर, आपको और बीमारी मिलेगी। एंड फिर आप सोचेंगे मैं इतने दिन से ध्यान कर रहा हूँ, इतने दिन से मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन सब कुछ किया है, तो उल्टा ही हो रहा है। तो यहाँ समझने की जरूरत है कि हमारा जो विचार है, भाषा पे मत जाइए, क्या विचार बार बार आपके दिन में आ रहा है उसमें हमें ध्यान देना है। क्योंकि जो विचार हैं जिस पे आप फोकस कर रहे हैं वो ही रियलिटी बन के आपके सामने आएगा। सो आपके जो विचार हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं आपकी रियलिटी, यानी कि आपके भविष्य को। सो हमारे विचारों से हमारे को फीलिंग आती है, हमारे फीलिंग से हमें इमोशन आता है। उन इमोशन से जो बॉडी में एंजाइम्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे हमारा जो शरीर है हमेशा एक एनर्जी रिलीज करता है, जो दोनों हर डायरेक्शन में 3 फीट तक एनर्जी वो आराम से हो सकती है। तो इसलिए क्या ऊर्जा हम रेडिएट कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा आपके विचारों पे। जब हम ध्यान करते हैं, अपने विचारों में सुधार लाके पॉजिटिव विचार रखते हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि मैं बीमार नहीं हूं, अब हम ये कह रहे हैं मैं सेहतमंद हूं। जब आप सेहत की बात कर रहे हैं तो आपको सेहत मिलेगी, जब आप बीमारी की बात कर रहे हैं बीमारी मिलेगी। अब जब हमने ये पॉजिटिव, खाली थोड़े से शब्दों का हेर फेर है, लेकिन अब हमारे जो सपने पूरे हो रहे हैं, अब जो भी हम चाहते हैं वो हो रहा है, और आपको लगेगा ये जादू कैसे हुआ। सो देखिए, किया आप ही ने, किया अपने विचारों से। ये जो आपका एफर्ट है, जिसको आप चाहते हैं मैनिफेस्ट, मतलब हमें अपने जीवन में क्या चीज चाहिए, जो चाहिए वो कैसा है, उस वो ही मैनिफेस्टेशन है। सो ध्यान रखिए, ये वो चीज होनी चाहिए जो आपके दिल से आ रही है। ऐसा नहीं कि मेरा पड़ोसी ने किया, मेरे भाई ने किया, मेरे दोस्त ने किया तो मुझे भी करना है, वो बहुत वीक डिजायर। जब आपके दिल से आवाज निकलती है तो वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम कहते हैं, यानी कि जो आप चाहते हैं उसको अपने जीवन में पाना, वो आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी आपके दिल से आ रही है, यानी कि आपकी जो एनर्जी है और आपके विचार वो मिले हुए हैं, वो यानी कि एक ही दिशा में है, एक ही एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है एक कह रहा है लेफ्ट दूसरा कह रहा है राइट। सो जब आप कोई चीज सच्चे मन से चाहते हैं, और चाहना एक बात है, उसमें विश्वास रखते हैं कि ये होगा, वो चीज होती है। अब मान लीजिए मेरे को चाहिए, मैं स्पोर्ट्स में मेरे को चाहिए गोल्ड मेडल। आज आपका कंपटीशन है, आपको चाहिए गोल्ड मेडल पहली चीज। लेकिन मन में विचार आ रहे हैं कि भाई देखो वो 2 लोग मुझसे ज्यादा स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, पक्का गोल्ड तो उनमें से ही किसी एक को मिलेगा। तो अब आपको विश्वास ही नहीं है कि ये होगा कि भी नहीं, यानी कि आपने नेगेटिविटी अपने मन में रख ली है, शंका, डाउट। तो दो चीज में से आपके पास एक है, दूसरी नहीं है। अब आपकी जो होने की संभावना है वो बहुत कम हो गई। आपकी चाहत है, लेकिन आप में विश्वास ही नहीं है कि ये हो सकता है मेरे साथ। तो ये चीज हमें अच्छे से समझनी है। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं जाना है।
इच्छा, और इच्छा पूरी होगी इसका विश्वास। ये दो सिंपल चीज है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचें अगर इतना आसान है तो सब क्यों नहीं करते। तो उसके लिए मास्टर्स आप एक बार करके देखिए तो इसका जवाब आपको मिलेगा। क्योंकि कहना बहुत आसान है कि विश्वास रखिए, ये कि आप कर सकते हैं, आपके साथ हो सकता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आप पे डाउट करते हैं। तो जब आपको लगता है कि काफी लोग आपके अगेंस्ट हैं, वो ऐसा सोचता है, वो ऐसा कहता है, उन सबको भूल जाइए। आप क्या सोचते हैं उस पर गौर कीजिए। अगर आप ही अपने पे डाउट कर रहे हैं तो कैसे होगा। चलिए, अब आपने ये देखा कि भाई हमेशा आपके मन में नेगेटिव विचार आते हैं, तो क्या आप कभी भी अपनी इच्छाएं को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि अपने जीवन में जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। नेगेटिव विचार आना कोई गलत नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है, हम सबके आते हैं। जहां इंसान है वहां नेगेटिव पॉजिटिव दोनों विचार आएंगे, क्योंकि विचार विचार है। हम उन्हें नेगेटिव पॉजिटिव मानते हैं। पहली चीज ये समझिए कि हम अपने जो सोचने की क्षमता, अपना जो मस्तिष्क है, हम उसको रीवायरिंग करेंगे। जो नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव कर देंगे। सो जब हम अपने विचारों को नेगेटिव से पॉजिटिव कर रहे हैं, अब आप बोलेंगे ये कैसे होता है। जैसे हमने आपको बहुत छोटा उदाहरण अभी हमने बात की थी। आप ये बोलिए कि मैं बीमार नहीं हूं, नेगेटिव है। आप बोलिए मैं स्वस्थ हूं, ये पॉजिटिव है। हल्का सा बदलाव किया, लेकिन इसमें दिन रात का फर्क आ गया। तो नेगेटिव से पॉजिटिव करना कोई बड़ी बात नहीं है, खाली समझने की देर है। ऐसा मत सोचिए कि इस उम्र में मुझसे कैसे होगा, मुझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको कुछ नया नहीं सीखना है, बस सिंपल चीज ध्यान में रखनी है। और ये हर कोई कर सकता है। बजाय इसके सोचे मैं बीमार नहीं हूं, मैं स्वस्थ हूं। इससे आसान क्या हो सकता है। हाँ, पहली बार में होगा नहीं, सुनने में आसान लगता है, मन फिर नेगेटिविटी की ओर ले जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रोसेस में बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है, डाउट नहीं कीजिए। जब प्रोसेस में डाउट करते हैं तो क्या होता है, आपको अपने आप पे डाउट होता है। उसमें बिलीव करके भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए प्रोसेस में कि ऐसा करने से होगा, और अपने आप पे भी कि आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सबके साथ हो रहा है लेकिन आप ही के साथ नहीं होगा। नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। अगर प्रोसेस समझ में आ गया, विश्वास हो गया कि यस मैं कर सकता हूं, मेरे साथ होगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, खाली सरेंडर। यानी कि अब दिमाग नहीं लगाना है। आपने प्रोसेस समझ लिया, विश्वास हो गया, नाउ जस्ट सरेंडर। आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। कब होगा, कैसे होगा, किस रूप में आएगा, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्स की प्रॉब्लम है। मान लीजिए मेरे को एक कार चाहिए। अभी मैं बैठने सोचूंगा तो हो सकता है दो या तीन तरीके हैं। मैं लोन ले लूं, कुछ सेविंग है, मिक्स कर लो, थोड़ा लोन थोड़ा ये, कोई गिफ्ट कर दे। मेरे को दो तीन रास्ते नजर आएंगे। यूनिवर्स के पास हजारों रास्ते हैं किसी भी चीज को पूरा करने के। तो आप ये मत सोचिए मुझे ये चाहिए तो इसी तरह चाहिए, वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए ना। आपको तो चाहिए, बस उतना काफी है। कैसे होगा वो यूनिवर्स का काम है। बट प्रोसेस की प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि जब आपको एक बार प्रोसेस समझ में आ गया, कैसे करना है, हाउ टू डू समझ में आ गया, तो जर्नी आसान हो जाती है, यात्रा बहुत आसान हो जाती है। क्यों, अब क्या करना है आपको, खाली उसे रिपीट करना है। अगर हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, जैसे हम कई बार जीपीएस लेके निकलते हैं, हमें पता है, तो हमें डाउट नहीं होता। जैसा जैसा जीपीएस बोलते हैं हम पहुंच जाते हैं। अगर आपको रास्ता नहीं पता है और पहली बार अनजान जगह जा रहे हैं, तो आपके मन में बड़े शंकाएं, और कई बार लगेगा कि यार मैं सही जा रहा हूँ कि गलत। क्वेश्चन पूछिए, क्लैरिफाई कीजिए, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन एक बार जब प्रोसेस समझ में आ जाए, सरेंडर एंड प्रैक्टिस। ये जादू की तरह दिखता है लेकिन है बहुत आसान। अगर इतना आसान है, क्या इसमें कोई चैलेंजेस नहीं है? चैलेंजेस हैं। सबसे पहली चीज, आपको क्लियर होना है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। जैसे हमने शुरू में ही कहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे कार चाहिए, क्यों चाहिए, अभी ही क्यों चाहिए, अगले साल क्यों नहीं।
5 साल बाद क्यों नहीं? मुझे नया घर चाहिए, अभी क्यों? कैसा घर चाहिए? कितना बड़ा, कितना छोटा, कहाँ पे चाहिए? क्लैरिफिकेशन। जितनी चीजें सिंपल रखेंगे अपने माइंड में उतनी अच्छी है, यानी कि जितनी क्लैरिटी। आपको पता है आप क्या मांग रहे हैं। एक होता है कि बस मुझे कार चाहिए। कार तो 50 तरह की हो सकती है। अगर आप क्लियर हैं, जिस हद तक क्लैरिटी को रखेंगे, जितनी ज्यादा रखेंगे उतना आसान है। नाउ, क्लियर होना एक बात है, लेकिन उसके अब कैसे आएगी उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। अब ये मत सोचने बैठ जाइए कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये करेगा वो करेगा, कौन करेगा कब करेगा। आपका काम है खाली क्लियर करना कि मुझे क्या चाहिए। बाकी यूनिवर्स पे छोड़िए, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ज्यादा डाउट करेंगे, और डाउट नेगेटिव एनर्जी होती है। यस, आप यूनिवर्स से ये मांग कर सकते हैं कि यार कोई साइन दो कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। ये मुझे कैसे पता पड़ेगा? उसके आपको अलग अलग तरीके से, क्योंकि यूनिवर्स आके कभी हमसे हमारी भाषा में बात नहीं करता। वो इवेंट्स हमारी लाइफ में आते हैं, अलग अलग चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं, कुछ इंडिकेशंस आते हैं, कभी कोई पिक्चर, कोई फोटो, कोई मूवी, कोई बुक, कोई मैगजीन, या कोई बात कर रहा है आपस में, अलग अलग तरीकों से हमारे पास मैसेजेस आते हैं। सो देखिए, हम जिसको क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं वो ये आसान कर देता है हमें समझना कि कैसे हमारे विचार हमारे पूरी की पूरी हमारी पर्सनैलिटी चेंज कर देते हैं। क्योंकि ऐसे लगता है कि ये कैसे होगा, लेकिन अगर आप क्वांटम फिजिक्स के थ्रू समझेंगे सो ये आसान हो जाता है। सो कैसे करना है, हमें क्या करना है? अगेन, आप अपनी थॉट्स या अपने विचारों से सबसे पहले उनसे आपको क्लियर होना चाहिए कि आप में नेगेटिव हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, कैसे हैं। यानी कि आपको अपने अंदर झांकना होगा, क्योंकि आपके विचार आपके अंदर हैं, दूसरे के में नहीं। फिर नेगेटिव वाले को पॉजिटिव की तरफ ले जाना है, और ये खाली आप कर सकते हैं। ये मत सोचिए यूनिवर्स आएगा एक चेक लिख के दे देगा। काम आपको ही करना है, और करना क्या है, खाली नेगेटिव से पॉजिटिव। सो जब पहली बार आपने जो मांगा है वो चीज आपको मिलेगी ना, तब आपको लगेगा कि यस, ये तो काम करता है, ये कोई जादू नहीं है, ये मैं कर सकता हूँ, ये प्रोसेस मुझे समझ में आया। जब ये चीज समझ में आ जाती है, अब आप उसे बार बार कर सकते हैं। इसमें एक चीज सबसे बड़ी क्या है, ट्रस्ट। जहां शक आ गया वहां सारी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। सो जब एक बार आपको प्रोसेस समझ में आ गया, अब आप जैसे हमने कहा ना, सरेंडर एंड गो फॉर इट। अब डाउट मत कीजिए। आपको करना ही क्या है, खाली ये पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए, और यूनिवर्स से मांग लीजिए। एंड देन ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरे को मिलेगा। मन में ये विचार होने चाहिए कि बस मेरे पास ऑलरेडी है, या कहते हैं ना, इट्स ऑन द वे, आने ही वाला है। एंड देन ओपन योर हार्ट एंड बी रेडी टू रिसीव इट। यानी कि उसको रिसीव करने के लिए, जैसे मेहमान आते हैं, हम क्या कहते हैं, दरवाजे पे आ जाते हैं जब हमें पता पड़ता है मेहमान आ गए। इसी तरह अपने दिल खोल के उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। दैट मीन्स देर इज नो डाउट। हमारे अंदर अलग अलग तरह के शंकाएं हो सकती हैं, जिसको हम कहते हैं डर भी होता है, कई बार डाउट्स होते हैं कि होगा नहीं होगा, टाइम पे होगा कि नहीं होगा, मेरे को तो इस साल चाहिए, अगर अगले साल आया तो क्या फ़ायदा। राइट, मान लीजिए आप कोई कंपटीशन के लिए कर रहे हैं। सो आपके मन में हो सकता है अलग अलग विचार, डर, शंकाएं आ रही हो। उससे होगा क्या, जहां ये नेगेटिव विचार्स आते हैं, आपकी जो, जैसे मैंने कहा, हर कोई एक, हर इंडिविजुअल की अपनी एनर्जी होती है।
हम उस एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं नेगेटिविटी से। सो उनको एक्नॉलेज कर लीजिए, लेकिन उनसे ना डरने की जरूरत है नेगेटिव विचारों से, ना हमें पीछे हटने की जरूरत है। खाली हमें नेगेटिव से पॉजिटिव करना है, एंड पूरी फेथ के साथ कि ऐसा होगा, आपको आगे बढ़ना है ना। ये जो मैनिफेस्टेशन है ये 3 लेवल पे हो सकता है। आप फिजिकल लेवल पे काम कर सकते हैं, मेंटल लेवल पे काम कर सकते हैं, आप साइको इमोशनल में काम कर सकते हैं। सो ये फिजिकल लेवल क्या है? सो होता क्या है कि जब आप अपनी फिजिकल रिजिडिटी, या जैसे कहते हैं ना कि जो आपकी बॉडी में स्टिफनेस है, आपकी बॉडी जकड़ी हुई है, जैसे आप सो के उठते हैं, आप आराम पूरी रात भर किया है, लेकिन जब सो के उठते हैं तो बॉडी थोड़ी स्टिफ होती है, अकड़ी हुई होती है। आप जैसे जैसे दिन में चलने लगेंगे, एक्टिविटी करेंगे, आपकी बॉडी फ्री होती है। सो यही चीज हमें देखनी है कि हम जब अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, उसमें प्राणा आराम से फ्लो होता है, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी भी कहते हैं। हमारे जो ब्रेन के सिग्नल्स हैं वो फ्रीली ट्रेवल होते हैं। नाउ हमारे शरीर में सबसे बड़ी नर्व होती है वेगस नर्व। इन वेगस नर्व को रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत आसान सा एक तरीका है कि जब आप बैठे हैं और अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखते हैं। सो जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट बनाए रखें, इमीडिएटली स्ट्रेस कम होगी। और जो सबसे बड़ी नर्व ही अगर आपको मदद कर रही है, तो सोचिए छोटी छोटी चीजों से आपको कितना लाभ मिल सकता है। सो जब प्राणा या कॉस्मिक एनर्जी ध्यान के समय सबसे ज्यादा, सबसे फ्रीली आपके शरीर में अगर जा सक रही है, तो उससे आपकी हीलिंग भी सबसे ज्यादा होगी। तो हमें करना क्या है? स्ट्रेचिंग। योगा मतलब डिफिकल्ट डिफिकल्ट आसान नहीं, खाली जो स्ट्रेचिंग वाले आसन होते हैं आप वो कीजिए। हेड टू टो हम कहते हैं, तो आप सर से शुरू करके पांव तक जितने बॉडी के जॉइंट्स हैं उनको रोटेट कीजिए। जैसे रिस्ट है, रिस्ट को रोटेट किया। जब आप सुबह उठते हैं मेडिटेशन से पहले, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हैं, अब जो ध्यान के समय कॉस्मिक एनर्जी आएगी हमारे शरीर में, वो आराम से फ्लो हो सकती है। तो आपने क्या किया? अपने फिजिकल, अपने शरीर को उस तरह बनाया कि उसमें आसानी से एनर्जी फ्लो हो सके। मेंटल लेवल क्या है? अब आप चाहते तो हैं, लेकिन मन में शक है। आपने कहा मुझे कार चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है यार कार मैंने ज्यादा मांग ली, हो सकता है अगर मैं खाली टू व्हीलर मांगता तो ठीक था, ये कार तो मैंने ज्यादा मांग ली। आपको डाउट है, डू आई डिजर्व, मैं मतलब इसको वाकई में मेरे को मिल सकती है, क्या मैं इस लायक हूँ? हमें वो डाउट आता है। म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ऐसी कोई भी चीज हो, स्टेज पे जा रहे हैं, आपको डाउट लग रहा है, लोग बाग ताली बजाएंगे या लोग बाग बोर हो जाएंगे, लोगों की समझ में आएगी आपकी बात या नहीं आएगी। ये जहां डाउट आ जाता है ना कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लोगों को क्या लगेगा, ये नेगेटिविटी की चीजें नेगेटिव रिजल्ट देती हैं। देखिए हमारे जो मस्तिष्क में जो सेल होते हैं उसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और जो न्यूरॉन्स अलग अलग एक साथ जुड़ के एक सर्किट बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि भाई दोज हु वायर टुगेदर, मतलब एक सर्किट अगर नेगेटिविटी का बना हुआ है तो मन में नेगेटिविटी भरी रहेगी। हम उस सर्किट को हम तोड़ के अगर पॉजिटिव सर्किट बनाएंगे, अब आपके मन में पॉजिटिव ही पॉजिटिव विचार आएंगे। तो अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन को रीवायरिंग करने के लिए बहुत आसान तरीका है प्राणायाम। प्राणायाम में भी हम कहते हैं अनुलोम विलोम, जिसको अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसलिए क्योंकि
ये बिना पॉज वाली, क्योंकि कई बार पॉज करके भी आप कर सकते हो, या बिना पॉज, यानी कि 2 स्टेप, एक्सेल इनहेल, यानी कि सांस छोड़ना सांस लेना। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं, मतलब होल्ड नहीं कर रहे, खाली लेना और छोड़ना सांस का चल रहा है, ये आपकी जो हमारे मस्तिष्क में जो दिमाग है, उसमें जैसे हम ब्रेन वेव्स कहते हैं, उसको धीमा कर देता है, यानी कि उसको रिलैक्स कर देता है। जैसे जैसे आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, उसको रिलैक्स करता है। अब ये रिलैक्स कैसे होता है? हमारा शरीर इतनी मजेदार, कहते हैं ना, एक इक्विपमेंट, एक मशीन की तरह है, जो हमें काफी चीजें पता ही नहीं। आप अगर अपने मन में बोलेंगे मैं सेफ हूं, हो सकता है मन माने ना माने, लेकिन जब आप सांसें धीमी कर देते हैं, ब्रेन को मैसेज पहुंच जाता है कि आप सेफ हैं। क्योंकि अगर कोई खतरा होता, अगर कोई डर होता, तो आप धीमी सांस नहीं ले सकते। इसलिए ध्यान से पहले अगर आप प्राणायाम करते हैं या डीप ब्रीदिंग करते हैं 5 मिनट के लिए ही सही, आपका ध्यान काफी अच्छा होगा, उसमें आपको ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी। अब ये साइको इमोशनल में क्या है, इसमें दोनों चीजें मिक्स हो गई हैं। सो इसमें आप देखेंगे, बहुत ही कॉमन चीज है, काफी लोगों में डर होता है, अलग अलग चीज का होगा लेकिन डर होता है। किसी को जॉब का डर, किसी को पब्लिक स्पीकिंग का डर है, किसी को स्विमिंग का डर है, किसी को ड्राइविंग का डर है, किसी को किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से डर है। एनजाइटी है, किसी को हर काम में एनजाइटी हो जाती है, किसी को किसी भी चीज में एनजाइटी नहीं होती। मूड स्विंग्स होते हैं लोगों के, आधे घंटे पहले हंस रहे हो और फिर अचानक से आप सब पे गुस्सा हो रहे हो। तो ये सब साइको इमोशन कैटेगरी में, यानी कि ये जो है आपके शरीर पे भी इम्पैक्ट करते हैं, मस्तिष्क पे भी इम्पैक्ट करते हैं, ये आपकी पूरी लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट करते हैं। इसके लिए क्या तरीका है? वो चीजें जो दोनों लेवल पे काम कर रही हैं, उससे निकलने का तरीका है ध्यान। ध्यान में बैठने से पहले अगर आप स्नान करके शावर लेके बैठेंगे, आपको फायदा मिलेगा। एसेंशियल ऑयल्स करके होते हैं कई बार, जिससे भी आपको वातावरण में लगे कि भाई आप बैठे हैं, आप एक, कहते हैं ना कि अपने अंदर से इच्छा आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है। हाँ, ध्यान से पहले ये नहीं है आपने पूरा भोजन किया हुआ हो। अगर आपने कोई भी जूस वूस पिया है तो 1 घंटे का गैप दे दें। नाश्ता किया है तो 2 से ढाई घंटा, और अगर पूरा खाना खाया है, लंच या डिनर, देन कम से कम 3, 3.5 या 4 घंटे तक का गैप देना होगा, डिपेंडिंग कितना हैवी आपने खाया है। क्योंकि खाने के इमीडिएटली बाद शरीर का एक ही काम होता है, वो है खाने को पचाना। इसलिए खाना खाते ही ध्यान में नहीं बैठिए। क्योंकि जब ध्यान में बैठेंगे तो सारी एनर्जी जो कॉस्मिक फ्लो है आपका, एनर्जी फ्लो हो रही है नाडीज में, ईड़ा पिंगला, वो जो है आपके हीलिंग के लिए आपको चाहिए। सो हैवी मील नहीं खाइए, आपको अगर मेडिटेशन करना है शाम में, जितना हो सके गैप दीजिए। विचार आएंगे, उनकी चिंता मत कीजिए। नेगेटिव विचार आपको, आपकी एनर्जी को डाउन करेंगे। आपको खाली एक काम करना है, उनको एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, मुझे पता है तुम हो, लेकिन अभी हम तुमसे बात नहीं कर सकते, अभी मैं ध्यान में हूँ। सो विचारों से लड़ना नहीं है, जितना उनको धक्का देंगे वो उतना आपके ऊपर आएंगे। जस्ट इग्नोर देम, तवज्जो मत दीजिए उन पे। तो देखिए, हमने 3 बात की, फिजिकल, मेंटल, साइको इमोशनल। आपको स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन और प्राणायाम, 3 चीज के बारे में मैंने बताया कि कैसे ये 3 चीज आपको इन तीनों चीजों में हेल्प करती है। तो जब आप ध्यान के बारे में सीख रहे हैं, स्ट्रेचिंग कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? खाली आपको आर्म रोटेट करना है, शोल्डर्स, पाँव, राइट? स्ट्रेचिंग वाली चीजें, अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें पूरे शरीर का हो जाता है, एक चीज में ही सब। प्राणायाम करेंगे, आपका मेंटल लेवल हो गया, मेडिटेशन जब आप कर रहे हैं तो आपका साइको इमोशनल लेवल भी हो गया। सो इसमें समझने की चीज ये है
कि लोग बाग ध्यान में बैठते हैं और कहते हैं ध्यान हो रहा है या ध्यान नहीं हो रहा है, हमारे को फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हर एक के अलग अलग परिणाम आते हैं। तो देखिए, ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं आंख बंद करके बैठा और लाइट ऑन हो गई। आपको अपने शरीर को उस योग्य बनाना है। ध्यान को ये नहीं है मैंने रेस लगाना सीखना है कि बस पूरी एनर्जी लगाई और मैं 100 मीटर दौड़ रहा हूं। अगर आपको ध्यान का रिजल्ट अच्छा चाहिए, परिणाम चाहिए, तो इसको सोचिए जैसे आप कोई एक पौधा लगाते हैं। आपको फल चाहिए या फूल चाहिए, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट फूल नहीं मिलेगा आपको। आपको पहले एक मिट्टी लेके उसमें बीज बोने होंगे, उसमें पौधा निकलेगा, उसको फिर पानी, प्रॉपर केयर, सूरज की किरणें सब होगा, तब उसमें फल लगेंगे। अब आप फल खा सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि मैं कुछ नहीं करूं सीधे फल मिल जाए, तो फल कैसे मिलेगा? फल तो पेड़ से, प्लांट से मिलेगा। इसी तरह मेडिटेशन है, इसी तरह प्राणायाम है, योगा है। आपको अपने शरीर को, अपने मन को उस योग्य बनाना है कि आप ध्यान कर सकें, प्राणायाम कर सकें, योगा कर सकें। जब आप इस को समझ के इसमें काम करेंगे, तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत आसानी से होगा। अब हमने जो मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन की, इसमें क्या समानता है देखिए। मैनिफेस्टेशन यानी जो भी चीज आप चाहें, तो उसका भी प्रोसेस यही है। मिट्टी ली, बीज बोए, उसका ध्यान रखा। क्यों? क्योंकि आपने पहले इस प्रोसेस को समझा, अपनी नेगेटिविटी हटाई, डाउट हटाया कि ये होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, उसको हटाया। अब आपने क्या किया? जैसे पौधे को लगाते हैं मिट्टी बीज, अब आपने वो तैयार किया। अब इस पौधे को निकलने दीजिए, उसको बड़ा होने दीजिए, यानी कि इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए। ये नहीं कि मैंने एक बार कर दिया तो काम खत्म। हर दिन आपको उसी विचार से रहना है कि नहीं, पॉजिटिव, और ये होगा। यूनिवर्स मेरे को ये मिलेगा ही मिलेगा। इमेजिन कीजिए ऑलरेडी मिल चुका है, विजुलाइज कीजिए उसे। अब आप क्या कर रहे हैं? उस विचार की केयर कर रहे हैं। जैसे पौधे को धूप, पानी, ये सब करते हैं, थोड़े दिनों में आप देखेंगे उसमें फल उग रहे हैं। इसी तरह आपके जो विचार हैं, अब वो पूरे हो रहे हैं। मैनिफेस्टेशन मतलब अब वो वाकई में आपकी लाइफ में वही हो रहा है जो आप चाहते थे। कुछ चीजें हो सकता है 1 हफ्ते में हो जाए, कुछ को हो सकता है 2 महीने लग जाए, कुछ को हो सकता है 5 साल लग जाए। ऐसा नहीं है कि हर एक का एक ही समय। और ऐसा नहीं है अगर मेरे को 5 साल लग रहे हैं तो आपको भी 5 लगे, हो सकता है आपको 1 साल में मिल जाए। ये फर्क क्यों है? क्योंकि डिपेंड करता है मैंने इस कितनी केयर की, कौन सी मिट्टी मिलाई, कौन से बीज, कौन सी उसको सूरज की लाइट दिख भी मिली नहीं मिली पौधे को। तो हर एक का शरीर अलग है, हर एक की केयर अलग है, लेकिन प्रोसेस सेम है। आप जितना ध्यान से करेंगे, जितना उसमें एनर्जी देंगे, उतना रिजल्ट अच्छा और जल्दी मिलेगा। लेकिन डाउट मत कीजिए और ये मत सोचिए मुझे कल शाम तक 5 बजे तक एक नया घर चाहिए। इस तरह नहीं है। आपको घर चाहिए, बात खत्म। यूनिवर्स को मैसेज दीजिए, अब डेली उसको फील कीजिए। कब आना है, कैसे आना है, कहाँ से आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी जगहों से आपको हेल्प मिल सकती है जहां हम कभी सोच नहीं पाते। तो इसलिए अपनी पॉसिबिलिटीज को रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए, लीव इट ओपन। यूनिवर्स के पास हम जितना सोच सकते हैं उससे कई ज्यादा तरीके हैं आपको मदद करने के। तो मास्टर्स, ये मैनिफेस्टेशन जो है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल चीज है जैसे आपने देखा। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत चीजें समझनी है, बहुत कुछ करना है। इससे सिंपल क्या हो सकता है? खाली आपकी इच्छा होनी चाहिए, उस इच्छा पे विश्वास होना चाहिए। ये ध्यान रखें, नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव वर्ड्स ना हो। और उसके बाद इस प्रोसेस पे विश्वास करके रिपीट करना है। और जिस दिन आपकी लाइफ में पहला मैनिफेस्टेशन होगा, आपको इतना विश्वास होगा कि आप फिर दूसरा, तीसरा अब आप करने लगेंगे। हाँ, ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है मैनिफेस्टेशन करना है मतलब आप 25 चीजें मांग रहे हैं एक साथ। उतनी ही मांगिए जितनी आप हैंडल कर सकते हैं। तो पहले 1 या 2 से ही शुरू कीजिए, क्योंकि आपको दिन भर उस फील में रहना है कि यस, ये आपके साथ है, ऐसा हो रहा है या हो चुका है। जितना आप उस फील में रहेंगे कि ये ऑलरेडी हो चुका है, उतना जल्दी वो चीज आएगी। और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। आप जितने एग्जाम्पल चाहे मैं अपने खुद के या दूसरों के जिनको मैं जानता हूँ दे सकता हूँ, लेकिन वो सब स्टोरीज होंगी।
जिस दिन आपका पहला मैनिफेस्टेशन होगा ना, वो आपके लिए सच होगा उस दिन। बट हाँ, कैसे करना है ये समझ लीजिए और उसके बाद कीजिए जरूर, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप क्या चाहते हैं। सो बैक टू यू ऋतु जी, एंड अगर कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो हम सर्टेनली। या थैंक यू सर, ब्यूटीफुल नॉलेज। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, यदि सही आपने बोला पॉजिटिविटी के साथ हम करते हैं तो हमारा मैनिफेस्ट होता ही है, जो भी हम थॉट रखते हैं। सच्ची में बहुत हुआ भी है, होता ही है। हम छोटा सा सोचते हैं और वो हो जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव वाली चीज या डाउट, इफ एंड बट्स अभी है ही नहीं माइंड में कि होगा कि नहीं। पूरा हम लोग ऐसे सरेंडर मोड में आ चुके हैं, पॉजिटिविटी से पूरे हैं फिल्ड अप। तो आई एग्री, ये चीजें वर्क करती हैं। एंड किसी का कोई क्वेश्चन है तो मास्टर, यस आप लोग हैंड रेज करिए। एंड मेडिटेशन करेंगे सर हम लोग। क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम फिर यस, ध्यान में चले जाएंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो रमेश मैम, आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज अनम्यूट कीजिए एंड क्या क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। यस। गौरव भाई बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया। पहले इतनी समझ नहीं थी, अब आ गई। पर मेरा सिली क्वेश्चन है, जी, सिली हाउ तो डू होता यू ही नहीं गो है कुछ। हाउ डू यू गो इनसाइड इनसाइड ऑफ योरसेल्फ। यू? या अगर आप दूसरे के अंदर नहीं झांक रहे हैं तो आप अपने अंदर हैं। हमारी तकलीफ ये है कि वी आर मोर वरीड अबाउट अदर्स, हमें दूसरों को डिक्टेट करने में समय निकाल देते हैं कि हम सबको ज्ञान देते हैं, तुम ऐसा करो, बच्चों को बोलेंगे, हम बताएंगे तुम्हें क्या करना है, हम हर एक को बताना चाहते हैं क्या करना है। हम इतने बिजी हैं दूसरों को इंटरफेयर करने में कि हम अपने अंदर झांक ही नहीं पाते। सो जब आप ध्यान करते हैं, जब आप ध्यान दूसरों करें, पर ध्यान ना दे। एग्जैक्टली जब आप ध्यान में बैठे हैं उस समय आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे। इस समय आप खाली अपने साथ हैं। इस समय आप अपने अंदर झांक रहे हैं। वन मोर क्वेश्चन, जी, हाउ यू सरेंडर योरसेल्फ? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि सरेंडर करना कैसे है, क्योंकि सरेंडर करना आसान नहीं है। यस। क्योंकि सरेंडर में सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि हम अपने आप से ही लड़ रहे होते हैं। जो भी अगर हमें तकलीफ है वो दर्द इतना ज्यादा है कि हम सोच ही नहीं सकते कि हम सरेंडर कर दें। यू वेरी राइट। तो कहानी अंदर से शुरू होगी। सबसे पहले ट्रस्ट डेवलप कीजिए, सरेंडर उसके बाद आता है। अगर ये प्रोसेस में हमने विश्वास कायम किया कि यस आई बिलीव इन दिस, ठीक है, शुरू में आप किसी और की कहानी को लेके विश्वास कीजिए, क्योंकि कहीं से तो शुरुआत करनी है। लेकिन आपकी निगाह है आपके रिजल्ट जो आपको चाहिए उस पर। तो आपको पता है कि उसके साथ हुआ तो मेरे साथ भी हो सकता है। अब इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए और वो आपको मदद करेगा सरेंडर करने में। वो इच्छा, वो विजुअलाइजेशन, आप ये सोच के बैठे हैं कि ऑलरेडी हो गया ये, और वो आपको मदद करेगा सारी नेगेटिविटी को कट करके सरेंडर करने में कि ठीक है यूनिवर्स, आई ट्रस्ट, आई बिलीव यू। ये एक चीज है। इसके साथ एक और चीज मैं जरूर कहूंगा, जो मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आज शुरू कर रहा है स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना, इस सब विषयों के बारे में जानना। वो व्यक्ति बोलेगा ठीक है, मुझे मैनिफेस्टेशन आपने जो बोला सब समझ में आया, लेकिन मन में फिर भी 50 डाउट है। यस। ऐसा ऐसा कैसे, वैसा कैसे, ये थोड़ी होता है, वो थोड़ी होता है। उसके लिए बहुत जरूरी है हम इसको यात्रा समझें। इट्स अ जर्नी, ये डेस्टिनेशन नहीं है। तो आज मुझे अगर ये एक टॉपिक समझ में आया है, मेरे को अपनी यात्रा कंटिन्यू करनी है, अब मुझे और टॉपिक्स भी समझने हैं। जिस दिन मेरे को समझ में आया फॉरगिवनेस क्या होता है, ग्रेटिट्यूड क्या होता है, नॉन इंटरफेरेंस क्या है, डिटैचमेंट क्या है, सोल प्लान या प्री बर्थ प्लानिंग क्या होती है। सो जैसे जैसे अब मेरा जो मेरी नॉलेज है, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है,
उसी के साथ मेरा विश्वास भी बढ़ रहा है इन चीजों में, क्योंकि एक टॉपिक सारी सवालों के जवाब नहीं दे सकता, कोई भी टॉपिक हो। शुरुआत करने के लिए ठीक है, आप अपनी यात्रा जारी रखें। जैसे जैसे आपको और विषयों के, इन टॉपिक्स के बारे में पता पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी बोलें, कुछ भी नाम से इसको लीजिए, यूनिवर्स, एनर्जी, आपको लगेगा यहाँ अब मैं विश्वास मतलब कर सकता हूँ कि ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। और जितना जितना विश्वास बढ़ता जाएगा, उतना उतना आप सरेंडर करने में सक्षम होते जाएंगे। ठीक है। क्योंकि सरेंडर क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डाउट है, हम्म। और डाउट नॉलेज से जाएगा, किसी के कहने से नहीं जाएगा। That's why we always bug Ritu Jain. करते रहिए, करते रहिए हमें। यस। अच्छा, लेकिन करने के साथ एक चीज और याद रखिए, आज आप उन्हें बक कर रहे हैं, कल अलाउ कीजिए कोई और आपको कर सके। आप ये मत सोचिए मैंने तो 1 महीने पहले, 1 साल पहले या 1 हफ्ते पहले शुरू किया। जितना आता है दूसरों को शेयर कीजिए। अगर अलाउ करेगा कोई। नहीं 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 नहीं, अगर अगर में तो डाउट आ गया। ओ। अगर है ही नहीं, जिसको चाहिए आपसे मदद, वो आपके जीवन में प्रकट होगा कहीं ना कहीं से, वो व्यक्ति। ठीक है। ठीक है, आपको सिचुएशन ऐसी आएगी, आपने ध्यान सीखा, कोई आपको ऐसा लगेगा कि ये भी ऐसी ही बात कर रहा है जो पहले मैं करती थी, तो आप उसको बोल सकते हैं, देखो मैं भी इसी स्थिति में थी, मैंने ऐसा किया, यहाँ ये हुआ। बस उससे ज्यादा नहीं, जितना आता है उतना ही। अब क्या होगा, आपका 2 वे ट्रैफिक शुरू हुआ है, आप ज्ञान ले भी रहे हैं और ज्ञान दे भी रहे हैं। इसका फायदा क्या है? अगेन, ट्रस्ट बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, नेट रिजल्ट सरेंडर आसानी से कर पाएंगे। Thank you so much. Come back again. श्योर। जी डेफिनेटली। यूनिवर्स के ऊपर है, मैं खाली उसी के कहने पे चलता हूँ, सो एब्सोल्युटली। यस सर, यहाँ पर ना सरेंडर के लिए एक जो हम ट्रस्ट करते हैं उसका मुझे एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल मींस ऐसा रहता है कि जी। जैसे एक छोटा बेबी है, वो रो रहा होता है और उसको इतना ट्रस्ट है अपने पेरेंट्स पर, तो वो जैसे उसको उठाते हैं और वो रोते हुए बेबी को ऊपर जैसे हवा में उछालते हैं, जोर से घुमा देते हैं, तो वो ये उसको ये डर नहीं है कि उन्होंने मुझे हवा में उछाला है, मैं गिर जाऊंगा। उसको ये ट्रस्ट है कि मेरे मॉम ने या डैड ने जिसने मुझे ऊपर लिया वो मुझे गोदी में संभाल लेंगे। और वो जैसे ही नीचे आता है वो खुश होता है, रोना भूल के वो बेबी कैसे ऊपर ऊपर किया, वो खुश होके वो अपना हंसने लगता है, रोना भूल जाता है। तो दैट इज अ ट्रस्ट, उसने सरेंडर किया अपने पेरेंट्स को कि अब ये मुझे संभाल लेंगे, और वो जो रोना है भूल के वो पूरा हंसी में। सो हमको भी लाइक ऐसा एक बच्चे की तरह पूरा यूनिवर्स पर जो भी जिसको भी हम मानते हैं ट्रस्ट करके वैसे हम सरेंडर करें तो वो हमको संभाल ही लेंगे एंड रोने या गिरने नहीं देंगे। But आपने where then Dushkarm comes? दुष्कर्मा तो एक तो डिफरेंट वो आ गया। No, no, इसमें कहीं तो आते हैं ना रास्ते में। देखिए, आप ये एक अलग सवाल की तरह पूछ रहे हैं या? नहीं नहीं, अलग नहीं, सरेंडर से ही पूछ रही हूँ। जी। सरेंडर तो कर दिया वा, पर जो ओके। इन बिटवीन दुष्कर्म आ गए बॉडी पर, फिर उसका क्या करें? इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप थोड़ा सा प्री बर्थ प्लानिंग और सोल प्लान के बारे में, उस विषय में जब आप जानेंगे, उसका आपको सीधा उत्तर मिलेगा कि क्यों कोई चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती। हमारे कोई कर्म अच्छे बुरे के हिसाब से मत लीजिए, हमारा प्लानिंग होता है। कर्मा एक ऐसा टॉपिक है, वो एक अलग ही पूरी पीएचडी है, तो इसलिए सिंपल उसमें अगर हम कहें तो उसमें मत उलझिए। पर जब उस आपकी जर्नी वो शुरू हो बादर रही है, करते हैं, वो जब आप आपको मेडिटेशन में बादर करते हैं। करेंगे, उसका काम वही है, क्योंकि वो नेगेटिव विचार हैं। तो जो हम्म। नेगेटिव विचारों के लिए हमने बात की, उनको उसी तरह डील कीजिए। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको समझ में आएगा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बट सरेंडर का मतलब यही होता है कि मैं कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा, मैं सरेंडर करता हूँ, वो है सरेंडर। ओके। तो अगर मन में आ रहे हैं विचार, तो उसको बोलिए कि ठीक है, अभी तो 10 मिनट रुक जा,
मुझे पहले ध्यान कर लेने दे, फिर तेरे से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये विश्वास है कि ये प्रोसेस मुझे इससे निकालेगा या ये प्रोसेस मेरे को फायदा देगा, तभी आप सरेंडर कर पाएंगे। अगर डाउट है तो सरेंडर नहीं कर पाएंगे। ओके। अब मैंने आपको इतना होमवर्क दिया है, मैं एक और दे देता हूँ। जब इन टॉपिक्स के बारे में जान लेंगे तो प्लेसिबो के बारे में जानिए, उससे आपको और मदद मिलेगी सरेंडर करने में। जो मैंने अभी कहा कि भाई ये मान के चलिए, ठीक है, डाउट मत कीजिए, तो इसमें एक प्लेसिबो नोसिबो करके विषय है। तो देखिए ये विषय एक एक करके आएंगे, इसलिए घबराइए नहीं। अगर पॉसिबल है तो मन को बोलिए, ठीक है, चाहे मुझे नहीं पता हो, लेकिन कुछ कुछ सुना है इसके बारे में, अभी और हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल मेरा पूरा विश्वास है, और विश्वास है मतलब मेरा ट्रस्ट है। ट्रस्ट का मतलब है सरेंडर, यानी कि जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए, बिना डाउट किए, बिना सवाल पूछे। ओके। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। यस, भारती जी अनम्यूट कीजिए। यस। थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कि जैसे कि हम अपनी लाइफ में खुश है, और मगर हमारे सामने कोई रो रहा है या हमारा बच्चा ही रो रहा है, और हम उसको गाइड नहीं कर पा रहे कि उसको क्या बताना चाहिए। भाई हम ये सोचते हैं कि उसका भी अपना सोल प्लान है, और हमें इतनी नॉलेज नहीं कि हम उसके लाइफ में मतलब वो बता पाए उसको भी उसको क्या करना चाहिए। तो उस टाइम हमें को किस चीज़ का मतलब हेल्प लेनी चाहिए, भाई कोई गुड एडवाइजर मिल जाए हमें कि उसको लाइफ में क्या सक्सेस में कहा कैसे पानी है। अगर वो कोई कोर्स चुनती है, उसको पसंद नहीं आ रहा, वो वहां पे रो रही है कि मुझे ले तो लिया मैंने, पर मम्मी मेरे से हो नहीं रहा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको क्या एडवाइस दूंगी, क्या कहूँ उसको। देखिए जो हमारा गुरु है, हमारा जो भगवान है, हमारा जो सबसे अच्छा दोस्त है, वो हम खुद हैं। सबसे पहले अपने दिल के पास जाना चाहिए। और जो हमारा भगवान गुरु सबसे अच्छा दोस्त है, हम उसी की नहीं सुनते काफी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। हम बाहर लोगों को ढूंढते रहते हैं, पूछते रहते हैं क्या करना है, क्या करना है। बहुत और सर जिसके हमें नॉलेज भी तो होनी चाहिए, जैसे आजकल इतने कोर्सेज आ रहे हैं, इतनी सब चीजें आ रही है, तो हमें उसकी चीज की नॉलेज ही नहीं है। देखिए सर अभी हमें ये छोटे भी नहीं बच्चे, पता चल रहा कि क्या बेस्ट है, सबसे बढ़िया क्या है, हमें ये भी नहीं पता। देखिए अभी ऋतु जी ने जो एग्जाम्पल दिया था बच्चे को उछालने वाला, वो क्यों करता है बच्चा आसानी से? वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, ट्रस्ट करता है, सरेंडर करता है। हम लोग क्या होते हैं ना, हम बहुत ज्यादा दिमाग लगा देते हैं। हम ये मानते हैं ये बच्चा है, इसको तो पता ही नहीं है। हम अलाउ ही नहीं करते हार्ट को यूज करने का। हम कब अलाउ करते हैं बच्चे को? या कितने लोग हैं जो कहते होंगे यार अपने दिल की सुन पहले, हमसे बाद में पूछ? कितने पेरेंट्स हैं जो ऐसा बोलते हैं? 99% पेरेंट हम कहते हैं नहीं नहीं, हम बताएंगे ना, हमें पता है क्या करना है। क्योंकि हमें लगता है अपने जीवन के अनुभव से हम सब आंसर दे सकते हैं। लेकिन वो हम अपने पृष्ठ हम अपने नजरिए से देख रहे हैं, उसके दिल में क्या है हमें कभी पता नहीं पड़ेगा। तो ये एक अनफॉर्चुनेटली जानवरों में बड़ी नेचुरल चीज है, जो मनुष्य में हमको, जो हम अपने को एडवांस कहते हैं, हमें सीखनी पड़ती है कि कैसे अपने दिल की सुने। हमको अपने को फोर्स करना पड़ता है कि ब्रेन एंड हार्ट कोहेरेंस करके, मेडिटेशन करके उस पावर को जागृत करें जो यूनिवर्स ने सबको दी है फ्री में। लेकिन आजकल की जो डे टू डे लाइफ, सोशल मीडिया, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम साइंस की तरफ भागते हैं। जो रियल साइंस है उसको हम जानते ही नहीं है कि हाउ डज आवर बॉडी वर्क। आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, आपके अलावा दुनिया में कोई और नहीं बता सकता। कोई हिप्नोटाइज भी करेगा तो भी अंदर नहीं जा रहा, अंदर आप ही जाके आंसर निकाल रहे हो, अपने अंदर जाके। नो वन एल्स कैन डू सो। बच्चे ने वो क्यों सेलेक्ट किया या हमने उसको क्यों किया, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। कोई कहता है कि भाई ये कैरियर आजकल सबसे ज्यादा डिमांड में है, इसमें काफी उन्नति, पैसा, ये वो बहुत रीजंस हो सकते हैं। लेकिन इच्छा मेरी म्यूजिशियन की है और मैं जा रहा हूँ स्पोर्ट्स में, बनना है मेरे को एक चीज, मैं जा रहा हूँ दूसरे डायरेक्शन में, तो अंदर से मैं खुश नहीं हो पाऊंगा। तो आज की तारीख में जो सलाह देना वो तो एक बात है, लेकिन हम सबको, अपने आसपास के लोगों को ये मैसेज देना चाहिए कि अपने दिल की सुनो, इसमें कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है।
सर जो उसकी सोल जर्नी है वो तो सर उसी को पता होगी ना सर, हमें तो नहीं पता उसकी एग्जैक्टली, सोल जर्नी। एग्जैक्टली। सो हाउ कैन वी टेल एनीवन कि हम कैसे कह सकते हैं तू ऐसा कर वैसा कर। हो सकता है मेरी सोल प्लान है कि मुझे इस लाइफ में अभाव, लैक फील करना है। अगर मुझे आया मैं इसीलिए, मेरा सोल प्लान है कि कैसा फील होता है लैक में, तो मेरे पास अभाव होगा, यानी कि पैसे नहीं होंगे, रिसोर्सेज नहीं होंगे। अब कोई कुछ भी कर ले मेरे लिए, अगर कोई मेरे को जबरदस्ती पैसा दे भी देता है, राइट, चाहे वो ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स कुछ, तो वो मेरे सोल प्लान के अगेंस्ट जा रहा है। जो दे रहा है वो तो सोच रहा है मैंने कितना अच्छा काम किया, मैंने इसकी मदद की, लेकिन वो तो मेरे सोल प्लान के अगेंस्ट है। आप दे दो, अगर मेरे से नहीं है तो वो मेरे फलेगा ही नहीं, वो काम आएगा ही नहीं। तो ये हो गया ना, जैसे उसको देख के, उसकी सिचुएशन देख के हमारी स्माइल चली जाती है या हम टेंशन में आ गए, तो इसी के ऊपर वर्क करें भी, हमारी जो स्माइल है वो गायब हो जाती है। एक दिन खुश होते हैं, फिर दूसरे दिन कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आती है, फिर वो ऐसा लगता है कि इसको कैसे हैंडल करें। तो ऐसा तो लाइफ में चलता ही भारती रहता जी, है। आज का क्या टॉपिक है? मैनिफेस्टेशन, राइट। मैनिफेस्टेशन तो यही है कि जो आप चाहें पा सकते हैं। तो अगर, सर पाना क्या है ये भी तो समझ आया, हमें चाहिए क्या ये भी तो, भी अब बच्चे ने करना है कोर्स, तो उसके लिए हम कैसे, मतलब एडवाइजर कोई मिल जाए, उसको कोई गुड सुनिए गाइड मिल सुनिए, जाए। कोई एडवाइजर की जरूरत नहीं है। जो मैनिफेस्टेशन टॉपिक है, जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस की हमने बात की है, आपने सुना, आपने समझा, अब आप और कुछ मत कीजिए। अब अपने बच्चे को बोलिए मैनिफेस्टेशन के बारे में सुन, मैनिफेस्टेशन के बारे में जानो, and उसको करने दीजिए। इसमें कोई लॉस नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने दिल के पास जाके उसको मैनिफेस्ट करने दीजिए। जब तक वो व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी में है, पॉजिटिव कैसे होगा? अगर उसने सोच के बैठा है कि मैं फेल हो जाऊंगी, आप कुछ भी कर लीजिए, दुनिया का कोई कुछ भी कर लेगा। अगर बंदे ने सोचा हुआ है कि मैं फेल होंगी, तो कोई पास नहीं कर सकता। कनेक्ट कीजिए उसको अपने दिल से, वही उसको एडवाइस दीजिए। बाकी अलग बात है, जो करना है वो कीजिए, लेकिन वो तब तक फायदा नहीं होगा जब अंदर से आपकी एनर्जी और वो एडवाइस सेम डायरेक्शन में ना हो। तो मैं हमको ये अंदर लगता से है जो डरा भी हुआ हूँ। सिचुएशन आई है तो कुछ ना कुछ मतलब उसको सिखाने के लिए आई है, जो भी उसके पास ये सिचुएशन आई है इस टाइम, तो वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आई है ना, मतलब यहाँ पे देखिए, हंड्रेड कुछ ना परसेंट कुछ सीखने। अगर आप इस सेशन में हैं, मैं इस सेशन में हूँ, कोई कारण है। इतने अलग अलग मास्टर्स हैं, किसने क्या पूछा, हो सकता है ना ये आपके लिए हो, ना ये मेरे लिए हो, ना ये ऋतु जी के लिए हो, ना ये किसी के लिए हो सकता है वो व्यक्ति जो खाली सुन रहा है हमारी बातें, जिसने सवाल पूछा भी नहीं है, ये उसके फले के लिए हो। तो वी नेवर नो। सोल प्लान इज, मतलब बहुत ही अच्छी लेकिन कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो सिंपल में जो कीजिए, उसको मैनिफेस्टेशन पे जाइए, अपने दिल की सुनिए और मैनिफेस्ट कीजिए। सबसे पहले तो ये, उससे दो फायदे होंगे। आप अपने दिल की भी सुनेंगे, ठीक है ना, और दूसरी, आपको ये भी पता लगेगा कि कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ भी पा सकती हूँ। एनी वन कैन बिकम एनीबॉडी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो उसकी इच्छा हो आपके बच्चे की, लेट द पर्सन मैनिफेस्ट दैट। ठीक है सर, ठीक है, यही कहते हैं वो खुद अपना मैनिफेस्ट करे और अपने हिसाब से जो उसको अच्छा लगता है वो शुरुआत करे। के लिए तो, ये ना, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेलकम। मच। My turn, Ritima. आत्मबंधन गौरव सर, नमस्कार। वंदन संपूर्ण ऑल फ्रेंड्स। सर मेरी एक क्वेश्चन है, आपने बोले मैनिफेस्टेशन का, इसमें मोर लाइक मोर अवेयर के लिए फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल और साइको इमोशनल लेवल में हम लोग काम करते हैं। तो फिजिकल लेवल में स्ट्रेचिंग, मेंटल लेवल में प्राणायाम और श्वास क्रिया, और साइको इमोशनल में हम लोग मेडिटेशन करते हैं बोले। और एक बात बोले विजुअलाइजेशन भी। तो अब हम लोग ये विजुअलाइजेशन हाउ वी ऐड इन द मेडिटेशन, दैट आई वांट टू नो सर, हाउ टू विजुअलाइज, और डू वी डू ओनली द मेडिटेशन, कैन वी डू ओनली इन द मेडिटेशन, और विजुअलाइजेशन उसमें ऐड करना है, दैट आई वांट टू बी मोर क्लियर। सो पहले तो आपका धन्यवाद राधा जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, आई एम श्योर काफियों को मदद करेगा। तो देखिए, जो मैं करता हूँ, सबसे पहले मेरा होता है स्ट्रेचिंग, जो हम कहते हैं, ठीक है। जी
दो से 3 मिनट काफी है अपनी गर्दन से लेके पांव तक, जिससे एनर्जी आने के लिए बॉडी इज रेडी। Yes. उसके बाद मैं करता हूँ अनुलोम विलोम 3 से 4 मिनट। उसके बाद 1 मिनट के लिए जी। विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब जो मेरा अफर्मेशन है मैं उसको विजुअलाइज कर रहा हूँ कि वो ऑलरेडी हो चुका है। यस सर। मान लीजिए अगर मेरे घुटने में दर्द है और मेरे को उसका विजुअलाइजेशन करना है, तो मैं विजुअलाइज करूंगा कि मैं पहाड़ों पे घूमने गया हूँ। वो मैं तभी हो सकता है जब घुटने में दर्द नहीं है, राइट। क्योंकि अगर मैं दर्द के बारे में सोचूंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं एक पॉजिटिव चीज के बारे में सोच रहा हूँ जो तभी संभव है जब वो चीज नहीं है जो आज मेरे लिए प्रॉब्लम है। 1 मिनट मैक्सिमम मैंने विजुअलाइज किया। इससे क्या फायदा हो रहा है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड में मेरी क्या इच्छा है, क्या रिजल्ट चाहिए, बिना वर्ड के उसको मैसेज मिल गया। अब मैं सीधे ध्यान में जा रहा हूँ। अब मेरा आधे घंटे का ध्यान है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, चाहे 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, आधा घंटा, 1 घंटा, डजेंट मैटर। अब जब मैं ध्यान में जा रहा हूँ, अब सब चीजें शट ऑफ हो गई हैं, यानी कि ना कोई मन में विचार है, ना कोई विजुअलाइजेशन है, ना अफर्मेशन है, कुछ नहीं है। अब खाली सांसों के साथ जुड़िए और ध्यान कीजिए, क्योंकि अब जो आपकी बॉडी एनर्जी रेडिएट कर रही है वो ऑलरेडी आपने बता दिया मुझे क्या चाहिए, राइट सर। और वो एनर्जी का पार्ट बन के यूनिवर्स में जा रहा है, और यूनिवर्स को जो एनर्जी आप भेजेंगे वही आपको वापस देगा। ओके सर। इस तरह हम पॉजिटिव चीज अपने जीवन में, जिसको हम कहते हैं ना, मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है। ओके सर। सो मेडिटेशन में करना नहीं है, तो बिफोर दैट ओनली वी विल डू, राइट सर? ओके सर। बिल्कुल सही, बिकॉज अगर ध्यान के समय आप अपना अफर्मेशन सोचने बैठ गए तो ध्यान नहीं होगा, क्योंकि फिर तो आप बाहर आ जाएंगे। जी, Thank you so much, sir, for this great knowledge. Thank you so much. Thank you वेलकम so much. Thank you. नमस्कार। वंदन सर। नमस्कार जी। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड सर। मैंने बस थैंक यू कहने के लिए आपके साथ बात करती हूँ, जब भी बात करती हूँ। 2022 में हमारा आपने क्वांटम फिजिक्स लिया था रंजन सर के साथ, तो जी पूरा जी प्लेसिबो, नोसिबो, पिनियल ग्लैंड, हार्ट कोहेरेंस, ब्रेन कोहेरेंस, ये सब क्लियर करवाया था। आपको इतना सारा थैंक यू बोल रही हूँ, सब क्लियर हो गया। जैसे कि विद्यावान, सॉरी, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, बस वही चीज काम करती है कि जैसे किसमें श्रद्धा रखी और उसको मिल गया, तभी मिलता है। थैंक यू सर, ये सब क्लियर करने के लिए। देखिए, ये सब यूनिवर्स का ही खेल है, हम सबको जोड़ता है। लेकिन आप इतने सालों से अगर जुड़ी हैं, इतनी चीजें समझी हैं, तो आई एम श्योर आप आगे भी लोगों की मदद कर रही होंगी इन विषयों में। यस, आई एम डूइंग दिस। हाँ, धन्यवाद। आपकी एनर्जी हमें जो मिली थी इतना, वो हम भी दूसरों में परो रहे हैं। देखिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एनर्जी ना मेरी है ना आपकी है, ये तो चलती रहती है, ये नदी का बहाव है। नदी सबकी है। अब वो नदी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ जाएगी, बस हम सब उसके एक एक जर्नी के छोटे छोटे हिस्से बनते रहते हैं। तो बस हम कहीं से लेते हैं और फिर उसको आगे बढ़ा देना है, हमारा यही काम है। सो जो आप कर रहे हैं दैट इज वंडरफुल, और ऐसे ही आप करते रहिए और दूसरों को प्रेरित करते रहिए। थैंक यू सर। और मैं तो यही मानती कि अभी मांगना कुछ नहीं पड़ता है। वो हमने एक सोचा कि नहीं, ईश्वर को पता ही चल जाता। हम ईश्वर ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते जब, तो जो जो चाहिए, जैसा भी चाहिए, जितना भी चाहिए, जब चाहिए, पूरा दिन मिलता ही रहता है। कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती अभी, ऐसा हो गया। सिर्फ ग्रेटिट्यूड निकलता। सी, ये है एक पूरा सर्कल। यस। तो जैसे आपने शुरू किया, जैसे हम बात कर रहे थे, एक टॉपिक समझा, फिर आप दूसरे में गए, फिर तीसरे में गए, तो चीजें और अच्छे से समझ में। और जब चीजें अच्छे से समझ में आती हैं तो सरेंडर भी आसानी से होता है। और जब आप सरेंडर एक अच्छे दिल की आवाज के साथ काम करते हैं, तो देखिए आपको भगवान को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप अब तो आपका कहते हैं ना कि लाइव टेलीकास्ट है, मतलब आपको फोन लगाने की बिल्कुल, जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल, ऐसा ही कनेक्टेड कुछ ना हुआ है। कनेक्शन पूरा हर 24/7 लगा रहता है। एग्जैक्टली।
So that's very good. सर मेडिटेशन के टाइम हम आंखें बंद करते हैं, अभी तो जागते हुए भी मेडिटेशन हो जाता है, मतलब श्वासों पे ही रहता है हमारा ध्यान, इतना प्रैक्टिस करते हैं हम, तो फिर अलग से बैठना भी नहीं पड़ता, बैठते पर पूरा दिन चलता है, ऐसा हो गया। थैंक यू सर। Thanks for sharing. बहुत अच्छा। ब्यूटीफुल शेयरिंग है मनीषा जी, थैंक यू सो मच। यस, खुशी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। Good morning, sir. Sir, Morning. if you remember, I've been connected to you since 2020 when I was in class 10th. जी, right. And आप मैं यदि अभी वीडियो तक सर ऑन आपसे करेंगे connected हूँ। खुशी जी, इफ पॉसिबल। Yeah, sure, ma'am. या Yeah. So now I'm in college and I've been following everything whichever you taught me. I remember it was a workshop back then when I connected to you. It was a workshop for children and youth. And since then I started doing meditation. And sir, टू बी ऑनेस्ट सच में मेडिटेशन ने बहुत हेल्प किया है मेरे माय लाइफ जर्नी सिंस टुडे एंड आई मीन कॉलेज एंड मैं अभी भी रेगुलर मेडिटेशन फॉलो करती हूँ सर एंड आई हैव बीन ऑब्जर्विंग कि मेरे साथ ऑलमोस्ट चीजें होती हैं। मैंने बैक देन भी आपसे बहुत सारी चीजें शेयर की थी, आई रिमेम्बर, और अभी तक भी लाइक रेगुलर कुछ ना कुछ होता है। आई मैनिफेस्टेड फॉर दिस क्लास ऑल्सो क्योंकि मेरे को एक मैनिफेस्टेशन के लिए क्लास चाहिए थी एंड वो चीज सच में हुई। मैंने यूट्यूब में देखा था, एक मैनिफेस्टेशन का बहुत ऐड आता था, मैंने वो ज्वाइन किया था, बट आई वांटेड यू टू कंडक्ट दिस सेशन एंड आज भी मेरा कोई मतलब ऐसा प्लान नहीं था ये सेशन अटेंड करने का क्योंकि मेरे को थोड़ा, मैंने लेट नाइट स्टडी की थी तो मेरे को सोना था, आई वांटेड स्लीप, बट अचानक से आई थॉट कि नहीं अब ज्वाइन कर लेती हूँ। देन आई रिमेम्बर, मेरे को ये चीज भी नहीं पता था कि आज अभी ये सेशन है 6:30 वाला। मैंने ऊपर ऐसा स्क्रॉल किया, देन आई सॉ कि अभी सेशन है, देन आई ज्वाइन दिस सेशन। इट वाज लाइक टोटली लिंक्ड टुगेदर, सो आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू फॉर एवरीथिंग। देखो खुशी, नहीं, थैंक्स फॉर शेयरिंग, बिकॉज इस तरह से जब अपन शेयर करते हैं तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। जो हम कहते हैं कि भाई आप एक तरफ से शुरू करोगे, चीज़ें अपने आप आएंगी आपके सामने, राइट। आपको राइट सोचने सर। की, या जैसे अभी हम दूसरे मास्टर से बात कर रहे थे कि भाई क्या डायरेक्शन चाहिए, चाहे बच्चे हों चाहे हम हो, डायरेक्शन हर किसी को लाइफ में चाहिए होता है। कहानी अलग हो सकती है बट हमें सवाल होते हैं हम्म जिनका जवाब चाहिए। सो जब आप इस हम्म जर्नी में आ जाते हो और इस जर्नी में रहते हो, ध्यान की जर्नी में, तो चीज़ें अपने आप आपके लिए आसान नहीं होंगी। अच्छे बुरे जो आपकी कहते हैं ना सोल प्लान है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन इन हम्म स्पाइट ऑफ, चाहे आप तकलीफ में भी होंगे, लेकिन अंदर से एक तरह से खुशी होती है, एक तरह से मतलब एक शक्ति होती है। राइट सर। तो दैट यस इज सर। व्हाट आई अंडरस्टूड, जो आपने अभी पूरा बताया। सो Yes, वेरी, I feel very like positivity inside myself and around myself also. I try to spread positivity as much as I can. सो इसीलिए देखिए, जब भी प्लान नहीं होता बट आपको कहीं ना कहीं से वो मैसेज या इंफॉर्मेशन मिली कि आज ये है, और आप जुड़ पाए। Mm-hmm. कई बार चाहते हुए भी हम नहीं जुड़ पाते हैं, कई बार कोई प्लान नहीं होता फिर भी जुड़ जाते हैं। Right, sir. Yes. यही मैनिफेस्टेशन है, यही यूनिवर्स का खेल है, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी। आपने ये इवेंट ड्रॉ किया अपनी लाइफ में, दिस इज मैनिफेस्टेशन, लाइव Yes, एग्जांपल। sir. Yes, sir. चलिए, आई एम That's it, वेरी sir. हैप्पी Thank फॉर, you. थैंक्स खुशी। थैंक यू खुशी जी। सी मास्टर्स, हम लोग हैंड टू हैंड हम देख रहे हैं कैसे मैनिफेस्टेशन के एग्जाम्पल हमारे सामने ही हैं। सो यस वीना जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को एंड आत्मवंदन ऋतु जी, गौरव जी एंड सभी मास्टर्स को थैंक यू वेरी मच। गौरव जी, आपने जो मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया, मैं अगर बचपन से रिफ्लेक्ट करूं अपनी लाइफ पे तो मुझे बहुत बार हुआ है, और इनोसेंटली ऐसे होता था कि कुछ निकल जाता था मुंह से और कभी सोचती भी नहीं थी, वो पूरा हो जाता था। एक बात मुझे अभी सवाल दिमाग में आया जब आपने बोला कि वो किसी की सोल प्लान में नहीं है। So when we are manifesting something and we don't know if it is in soul plan or not, could that be that we are manifesting something, it could be against my soul plan? जैसे आपने बोला कि किसी की soul plan में है कि उन्होंने भाव में जीना है. So if, for example, if it was in my soul plan to live in that lifestyle, and if I'm manifesting something that I have a high ambition और उसकी तरफ मैं बढ़ती जा रही हूँ, am I going against my soul plan?
how will that work with manifestation? सो देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है वीना जी। इसमें सबसे जरूरी ये है कि हम अपने लिए मैनिफेस्टेशन करें। होता क्या है कि या तो हम बच्चों के लिए चिंता करते हैं, या अगर ओल्ड एज है तो पेरेंट्स के लिए चिंता कर रहे हैं, और हम उनके लिए मैनिफेस्टेशन करने की सोचते हैं, तो वो गलत होगा। हर व्यक्ति को अपने लिए करें, वो ही सही है। तो जब मैं अपने लिए मैनिफेस्टेशन कर रहा हूं, अब जो कनेक्शन है बड़ा सिंपल है, मैं और यूनिवर्स। अगर मैंने कुछ चीज मांगी, वो मेरे सोल प्लान में है या नहीं, अनलेस मैं सोल प्लान अपना आप काम करके पता कर सकते हैं कि आपका सोल प्लान क्या है। लेकिन मान लीजिए मेरे को कुछ नहीं पता, आपका काम है मांगना। अगर आपके सोल प्लान के अगेंस्ट होगा तो यूनिवर्स आपको नहीं देगा। लेकिन अगर हम पहले से ये डाउट करेंगे कि है नहीं है, क्या होगा, ये होगा, तो फिर हर एक चीज में ही ना हो जाएगा, क्योंकि डाउट है हर एक चीज मांगने से पहले। तो इसलिए अपने लिए जो मांग रहे हो, कोई चिंता मत कीजिए, जस्ट मांगिए। यूनिवर्स को डिसाइड करने दीजिए, वो उसका काम है, हम क्यों इंटरफेयर करें उसके काम में। So my next question is, does that raise the question about the manifestation कि मैंने ठीक से नहीं किया? जैसे मैंने सोचा कि आपने एग्जाम्पल दिया कि मुझे कार चाहिए और मैंने मैनिफेस्ट किया और वो नहीं हुआ, तो does that raise the question on manifestation, or was it like, how does that connect to my journey of meditation and manifestation? देखिए, हमने मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन के लिए क्या बोला, आपको सरेंडर करना है। सरेंडर जी कब कर पाएंगे? जब आपको ट्रस्ट होगा, बिलीफ होगा। तो अगर आपको बिलीफ है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट किस पे, बिलीफ किस पे? यूनिवर्स पे। प्लस ट्रस्ट और बिलीफ प्रोसेस में, कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होगा, ये प्रोसेस में भी ट्रस्ट और बिलीफ होना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप पे। तो तीनों चीज में आपको ट्रस्ट और बिलीव करके आगे बढ़ना है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में यही तीन चीज इन्वॉल्व है। आप, वो प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, और यूनिवर्स, लेने वाला, देने वाला, और इन दोनों को जोड़ने वाला। ये तीन चीज ही हैं। इन तीनों में से किसी पे डाउट नहीं होना चाहिए। तो अपने आप पे डाउट मत कीजिए कि मैंने सही किया, गलत किया, क्या किया। आपका काम है मांगना, छोड़ दीजिए। 1 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, ये हमारा काम नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है। हाँ। मैंने जैसे, सॉरी, आप अगर बोलिए। अगर मान लीजिए आप कह रहे हो कि मैं 4-5 महीने हो गए, मैंने 4-5 चीजें अलग अलग संबंधित की हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो एक बार चेक कर लीजिए प्रोसेस में गड़बड़ है क्या, नेगेटिव विचार मन में आ रहे हैं क्या, या जो मैंने मांगा है वो नेगेटिव स्टेटमेंट तो नहीं है। चेक कर लीजिए, लेकिन डाउट मत कीजिए प्रोसेस में। प्रोसेस ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो चेक कर लीजिए। थैंक यू सर। यस सर, यहाँ चैट बॉक्स में लिखा है राधा जी ने, हाउ मेनी टाइम्स कैन वी डू विजुअलाइजेशन एज वी डू मेडिटेशन मेनी टाइम्स, कैन वी डू अकॉर्डिंगली? देखिए, हर मेडिटेशन से पहले आप विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि अफर्मेशन का ही विजुअलाइजेशन करेंगे। तो अगर मैं दिन में 2 बार ध्यान करता हूँ, सुबह शाम, मैं 2 बार करूंगा। मैं दिन में 4 बार ध्यान कर रहा हूँ अलग अलग समय, तो चारों बार कर सकता हूँ, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नाउ सबसे मजे की बात, अब आप कहें कि मैं मेडिटेशन नहीं, मैं नॉर्मल, राइट, जैसे अभी एक मास्टर ने आपसे शेयर किया था कि वो तो दिन भर ही कनेक्टेड रहती हैं यूनिवर्स के साथ। ये अल्टीमेट स्टेज है। अब आप इसके लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, मैं ध्यान करूं तो विजुलाइज करूं, आप दिन भर विजुलाइज कीजिए, राइट। उस पॉजिटिव इमोशन में रहिए कि मेरे पास है ये चीज, और उस चीज की आपको खुशी, एंजॉय कर रहे हैं आप उस चीज को। मान लीजिए घर है, आप दिन भर इसी विजुलाइजेशन में है कि मैं उसी घर में हूं जो आपने सोचा है, उसकी पावर और बढ़ेगी और वो और जल्दी आपके पास आएगा। बट हाँ, एफर्टली करके ये नहीं है, सारे कामों के अगेंस्ट जाके, वो नेचुरली आना चाहिए।
सो एकदम से जंप मत कीजिए कि 24 घंटे में उसी विचार में हूँ। मेडिटेशन से शुरू कीजिए, वो धीरे धीरे आपका जो मन, देखिए हमारा बॉडी और माइंड बड़ा कमाल की चीज है, उसका जो तालमेल है ना, उसको लेके चलना है। तो जब नेचुरली उस स्टेज में आप आ गए कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, तो सही है। स्ट्रेट अवे जंप नहीं करना, वरना वो तो फोर्सफुल एफर्ट हो जाएगा। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। कॉन्शियसली याद करना चाहिए, बट थैंक जी, यू, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। वेलकम। किसी का सो और का कोई अभी किसी का नहीं है तो हमारे पास 15 मिनट हैं, हम ध्यान कर लेते हैं अगर। यस, डेफिनेटली सर। ओके ओके मास्टर्स, चलिए, तो ध्यान से पहले हम सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। तो अपने अगर घड़ी, चश्मा, ऐसा कुछ भी है तो आप उसको उतार के साइड में रख सकते हैं, जिससे आप कंफर्टेबली बैठें। आंखें बंद, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट बनाए रखिए, ये आपकी वेगस नर्व को रिलैक्स करेगी। अब अपने चेहरे की मसल्स को रिलैक्स कीजिए, अपना गला, गर्दन को रिलैक्स कीजिए, शोल्डर्स, कंधों को, और किसी तरह का तनाव वहां महसूस ना हो। अपनी पीठ, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी है, उसको सीधा रखिए, लेकिन एकदम आराम के साथ। हाथ और पाँव को एकदम रिलैक्स। ध्यान, जो क्रॉस पोस्चर बनाते हैं हम हाथ और पाँव का, उसको सुखासन में आराम से बैठ सकते हैं। आप किसी चीज का सहारा लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स फील होना चाहिए। ना, अब हम अपने मन को शांत करेंगे, तो अगले 3 मिनट अनुलोम विलोम, जिनको अनुलोम विलोम आता है बिना पॉज के, यानी कि राइट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल, बिना पॉज किए एक्सेल के बाद इनहेल, और फिर हम लेफ्ट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे और राइट से एक्सेल करेंगे। इस तरह राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रल के बीच में हम अनुलोम विलोम करेंगे। जिनको ये नहीं आता, आप खाली धीमी सांस लेना चाहें वो भी ठीक है। तो जितना धीमे हो सके सांसें छोड़िए, और जितना धीमे हो सके अपनी सांस लीजिए। अगले 3 मिनट एट योर ओन कंफर्टेबल लेवल, सांस को लेना और छोड़ना जितना धीमे कंफर्टेबल पॉसिबल है आपके लिए, कंटिन्यू कीजिए। इससे मस्तिष्क को ये संदेश पहुंच जाता है कि आप सुरक्षित हैं, आप सेफ हैं। और जब ब्रेन को ये समझ में आ जाता है, वो आपको स्ट्रेस से निकाल के जो हीलिंग मोड होता है उसमें ट्रांसफर कर देता है, जो हमें ध्यान में ले जाने के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि इस प्रोसेस में आपकी ब्रेन वेव्स स्लो हो जाती हैं, जो हमें ध्यान के लिए चाहिए। लेट्स कंटिन्यू।
नाउ मास्टर्स, अब आप सांसें नॉर्मली लेना शुरू कीजिए। अगर अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल कर चुके हैं तब सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। और अगर आप धीमी सांस ले रहे थे तो अब आप नॉर्मल सांस लेना शुरू कर दीजिए। ध्यान में जाने से पहले हम 1 मिनट के लिए विजुलाइज करेंगे अपना जो भी आपका अफर्मेशन है। इमेजिन कीजिए कि वो पूरा हो गया है और उससे संबंधित जो भी इमोशन है उसको महसूस कीजिए। पॉजिटिव एलिवेटेड इमोशन, चाहे वो ट्रू लव हो, अबंडेंस है, ये जो भी इमोशन है उसको फील कीजिए। अपने हार्ट, अपने पूरे शरीर में उस इमोशन को फील कीजिए। नेक्स्ट 1 मिनट, जस्ट फील इट। नाउ मास्टर्स, हम ध्यान में जाएंगे। अब कोई इमोशन, कोई फीलिंग, कोई थॉट, कोई विचार नहीं, खाली अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। तो हम अपनी अंदर जाती और बाहर जाती सांस से जुड़ेंगे। हर अंदर जाती सांस अपने साथ काफी सारी कॉस्मिक एनर्जी लेके जाती है, जो हमारी नाड़ियों में, ईडा और पिंगला में बह के हमारे को हील करती है। हमारे पूरे शरीर में उसकी पहुंच होती है। और हर बाहर जाती सांस हमारे शरीर से काफी सारे टॉक्सिन्स बाहर निकालती है। इसीलिए श्वास को प्राणा कहा गया है। अपनी सांसों के साथ बने रहिए। हर अंदर जाती और बाहर जाती सांस पे बने रहें। ध्यान के समय विचारों का आना स्वाभाविक है। इनसे लड़िए नहीं, खाली इनको इग्नोर कीजिए। जब लगे आप किसी विचार में उलझ गए हैं, उस विचार से निकलिए और फिर से अपनी सांसों को महसूस कीजिए। चलिए, अपनी सांसों से जुड़े रहिए। लेट्स कंटिन्यू।
Dear masters, let's rub our palms together. हम अपने हाथों को आपस में रब करके अपनी आंखों पे 5 सेकंड के लिए लगाएंगे. 5, 4, 3, 2, 1, 0. अब धीरे धीरे अपने हाथों को आंखों पे से हटा के अपनी आंखें खोलिए. नॉर्मल वातावरण, नॉर्मल एनवायरनमेंट में आ जाए. So धन्यवाद मास्टर्स, मेकिंग इट अ ग्रुप सेशन. थैंक यू. थैंक यू रितु जी. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू सो मच. हम लोग इनको इंतजार रहेगा आपके साथ एक और टॉपिक के साथ सुनने के लिए. तो डू विजिट सर. थैंक यू सो मच. Thank you, sir, very much. Thank you. You Thank you so much, sir. Thank you. connect. Check. Gratitude. Thanks. Bye-bye. थैंक यू सर. लॉट्स ऑफ Thank you, Riti ma'am. Thank you. Thank you. थैंक यू सभी मास्टर्स. आप सब लोगों के थैंक यू वैल्यूएबल टाइम के लिए यहाँ साथ में जुड़ने. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. Thank you. कंक्लूड करते हैं आज का सेशन. कल मिलेंगे हम लोग सेम लिंक सेम टाइम पर. कल से हम लोग एक ड्रीम वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं. तो जो भी इंफॉर्मेशन है ग्रुप में मैं पोस्ट करूंगी डेफिनेटली. तो आप लोग ग्रुप से जो भी इंफॉर्मेशन लीजिए. थैंक यू सो मच. Thank you. Love you all. लव यू.